So let us discuss the important questions in detail about the forest and wildlife resources. The first one is the MCQs. So let me give the question to you. Which one of this statement is not a valid reason for the depletion of flora and fauna? फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन के लिए कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? सबसे पहला है एग्रीकल्चरल एक्सपांशन, सेकेंड है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, थर्ड इज ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, and fourth is rapid industrialization and urbanization. So the actual answer is of course the option D, that is rapid industrialization and urbanization. So पहले MCQ का first which we are discussing is the MCQs और उस first question का आंसर है rapid industrialization and urbanization. Okay. Now next one, which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? First, joint forest management, second, beach bachao andolan, Chipko movement, or the demarcation of wildlife sanctuaries. So कौन सा है ऐसा मेथड? So that is of course the option D, that is demarcation of wildlife sanctuaries. So second का आंसर है demarcation of wildlife sanctuaries. Okay, now let us go to the next set of the questions. The next set of the questions is regarding the match the following animals with the category of existence. Okay, so let us see the first one, that is the black buck. So I am giving the answers to you directly. So second question is regarding the match the column MTC. So इसमें मैं animals and plants का एक category बनाता हूँ. This is one category, students, okay, animals and plants, and second is regarding their existence. So I am giving the answer to you directly. The first one is black buck. So black buck का आंसर आएगा endangered. Second is Asiatic elephant. इसका आंसर आएगा vulnerable. The third one is Andaman wild pig. And answer for this is endemic. Fourth one is Himalayan brown bear. So this is Himalayan brown bear. और इसका आंसर है rare. And the fifth one is your pink head duck. And he is extinct. ओके, सो एक ये क्वेश्चन हो गया अपना मैच द कॉलम का, जिसमें आपको मैंने आंसर्स दे दिए. द सेकेंड वन इज़ द फॉरेस्ट. सो इसमें कैटेगरीज आएंगे द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और उसके जो रीजंस है उनके आंसर्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड सेट. थर्ड, सो सबसे पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, फिर भी फटाफट इसके आंसर्स लिख देते हैं. रिजर्व फॉरेस्ट का आंसर आता है फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. सो जो सेकेंड पॉइंट है वो एक्चुअली फर्स्ट का आंसर है. सो मैं इधर लिखता हूँ जो एक्चुअली ऑप्शन बी है, दैट कम्स टू योर आंसर 1. सेकेंड इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. सो जो आपके क्वेश्चन में थर्ड दिखता है, दैट कम्स द आंसर टू पॉइंट नंबर सी.
ओके, सो बेसिकली आपका ये आंसर क्या बन जाएगा, सी वाला आंसर बन जाएगा. तो सी इज द राइट आंसर. 3. सो अभी बच गया ए. सो अनक्लास्ड फॉरेस्ट, unclassed forest. Okay, what is this forest actually? This forest is what? Other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. So that comes under the unclassified forest, which is actually option A. So with this we wind up the major part of your optional questions. Now we are going to the major one, that is the actual question answers for 30 words. So 30 words में सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. सो लेट अस सी 30 वर्ड्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी. नो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी, नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस. सो इसमें बेसिकली होता है वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, right? Now, among the 6 major environmental threats facing humanity, the loss of biodiversity is a serious one. The other 5 threats are, come on recollect. First is population explosion. वहाँ पे पेन डाउन कर देते हैं हम लोग इस पॉइंट्स को. अदर जो थ्रेट्स है, दे आर पॉपुलेशन explosion, then creation of ozone hole, climate changes or climatic changes. We can see the each season is getting severe and severe. Land degradation, ये एक मेजर प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वी हैव श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम. and spreading of AIDS. So इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग के पास पहले से बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ और एक क्वेश्चन लिंक्ड है, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स. सो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू आई नीड इट इन माई लाइफ, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो उसके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस in human life. Okay, now let us start. The human race cannot exist without biodiversity. Biodiversity has to be saved for the long term benefit and well-being of the biosphere, including the human race. So I need it for my long term benefit. So मेरा existence, मेरा long term benefit, ये सब इसी में मुझे मिलेगा. मेरा वेल बीइंग सब इसमें मिलेगा. सो इट प्रोवाइड्स सेवरल प्रोडक्ट्स टू अस. इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स सेवरल प्रोडक्ट्स. इट इज एसेंशियल फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. सो जो मैंने पहले डिस्कस किया है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ let's go to the next one, the activities which are affecting the depletion of flora and fauna. ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है जो हमारे फ्लोरा फाउना को डिप्लीट करने में तुले हुए हैं. सो ये सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट वाज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस. ओके, नाउ लेट्स गो सेकेंड वन, फैक्टर्स which are causing depletion of flora and fauna. Okay, now human activities or human beings have transformed nature by utilizing flora and fauna directly or indirectly from forest and wildlife and reduce their areas. ये तो कॉमन सी बात है. हमने क्या किया है, हमने उन लोगों को यूज़ करके हमारे एरिया को एक्सपांड किया है और उनके एरिया को श्रिंक किया है. नाउ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हमको क्या क्या मिलते हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं. सो वी गेट वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ऐसा करने का रीज़न क्या है, एंड वी गेट वेरियस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स. ओके, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आएगा वुड, बार्क्स, लीव्स. दिस यू मस्ट हैव बीन हियरिंग.
इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल हेल्प भी मिलते हैं, कुछ केमिकल इक्विपमेंट के लिए काम आते हैं. सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स पॉसिबल. इसमें से सबसे मेन तो फ्यूल, फूड एंड इवन फॉडर. Okay, now let us go to the next point. The next point is about wildlife. So wildlife में मुझे एक किसी भी एनिमल को इमेजिन करो तो सबसे पहले फूड, फिर उसका स्किन, फिर बोन्स. These are the most important ones which we use. Then we also go to hides, which are used in formation of leather, hair, fur, जो हम लोग स्वेटर्स बनाते हैं. उसके बाद ये फूड इन द फॉर्म ऑफ सर्टेनली मीट, देन मिल्क, लेदर, हॉर्न एटसेट्रा. नाउ हम लोग ये सब उसमें से यूज़ करते हैं, वाइल्ड प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं. सो ये प्रोडक्ट्स हम लोग को चाहिए, इसीलिए वी आर गोइंग टू अटैक देम. एंड देर आर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. सो दे आर सच एज रैपिड industrial and agricultural development. Agricultural expansion. Second, expansion of railways and expansion of commuting routes. Expansion of modern transportation. In modern transportation we will get roads, नए roads चाहिए और new roads चाहिए, because जो है वो ही हमको मतलब satisfy नहीं कर पा रहे. I will need more and more shifting cultivation in forest regions, because that is also a very important point. ये हमने देखा था, झूम cultivation के नाम से भी famous है. So this is shifting cultivation. This is done by the tribal people. So these are the other factors, okay. Fourth is large scale development of projects like river valley projects. River valley projects. हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स इन दी डिस्कशन ऑफ द चैप्टर्स कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कैसे डैमेज करते हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनने पड़ते हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और नॉर्मल विक्टिम्स बनते हैं. फ्लोरा एंड फॉना मतलब एक काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया इसका विक्टिम बनेगा. द फिफ्थ वन इज mining activities. What are mining activities, students? Extraction of minerals. That means it is nothing else but what? It is nothing else but doing metallurgy. तो जब भी कोई माइनिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ी कैविटी बनानी पड़ती है, एक माइनिंग का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी करनी पड़ती है. इन दिस केस व्हाट आर वी डूइंग? सेम, ये सब लोग मिलकर वही काम कर रहे हैं, एक बड़े से एरिया को डिप्लीशन की ओर लेके जा रहे हैं, एक बड़े से सुंदर एरिया को काफ़ी हद तक बदसूरत बना देंगे ये लोग. नेक्स्ट इज पोचिंग. सिक्स्थ इज पोचिंग एंड स्मगलिंग इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज. ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी हद तक चलता है. विच टेल्स मी द इलीगल हंटिंग, इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. 7, आज भी हंटिंग होती है, बट ये सर्टनली नॉट ऑन दैट हाई स्केल, बट हंटिंग होती है. और आज के टाइम पे अगर हंटिंग होगी तो इट इज़ गोइंग टू डू व्हाट? इट इज़ गोइंग टू डैमेज दी एग्जिस्टिंग जो एनिमल्स. हमने इधर देखा था कैसे एनिमल्स का अपना जो डिवीजन है वो मिला है. So more and more animals will be going towards the rare and then extinct conditions. Activities of the tribal population. So shifting cultivation और ये point match होता है, that is the activities of the tribal population. See, these people are staying in their home. ये उनका घर है, फॉरेस्ट उनका घर है, so उनको लगता है वो उनका घर है, वो कैसे भी रह सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. बेसिकली हम लोगों ने पहले ही उनका घर छोटा कर दिया है, एंड ये लोग भी अगर एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड fauna. So it's a quite big answer, quite sufficient for 30 words. Now let us move to the 120 section. 120 words के जो questions है उनको discuss करते हैं. So let's start with the first one. Okay. The first one is based on conservation and protection of forest and wildlife by communities in India. So हमने पहले भी डिस्कस किया है, चैप्टर के डिस्कशन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है.
अभी हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन इंडिया, काफ़ी टाइम से चालू है। फॉरेस्ट आर दी होम ऑफ सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऑल्सो, दैट मीन्स फॉरेस्ट में, फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट इज ऑल्सो द होम ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। ये वो कम्युनिटीज है जो इनका रक्षण करते हैं, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। ओके, इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government officials. So some of them are struggling to conserve their habitats. They want to conserve their habitats. किसी को भी अपना घर प्रोटेक्ट ही करना रहेगा, वो उसको कभी खराब नहीं करेगा। Now they are now recognized that they have now recognized that only this will secure their own long-term livelihood. So there are some projects जिसके हम बात करेंगे अभी। So फटाफट उसको नोट करना शुरू करो। सबसे पहला है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो सरिस्का टाइगर रिजर्व, सो राजस्थान में, इन राजस्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसमें क्या किया? विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग। किसके अगेंस्ट गया? इट वाज वर्सेस द माइनिंग एक्टिविटी। इनको किसने सपोर्ट किया? बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने इनको सपोर्ट किया। Okay, in many other areas, villagers themselves protect habitats, thus explicitly reject government involvement. So ऐसे बहुत से दूसरे areas है, तो ये तो specific हो गया राजस्थान। There are many areas जहाँ पे ये areas में यहाँ पे रहने वाले villagers क्या करते हैं? These villagers they are trying to go against or they reject government involvement. The villagers reject government involvement. Now, third point, in Uttarakhand, the Chipko movement successfully resisted deforestation in several areas. So, अभी तीसरा पॉइंट हम जा रहे हैं उत्तराखंड। ओके, इसमें कौन सा मूवमेंट हुआ? चिपको मूवमेंट। किसके अगेंस्ट गया वो? इट वॉज अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन। सो इट वॉज वर्सेस डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट डू वी सी फ्रॉम हियर? अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जोन्स में दे आर हैविंग दी डिफरेंट वेज और मेथड्स टू फाइट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और दी ऑथोरिटीज। इससे क्या किया उन्होंने? दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट? दे आर ट्राइंग टू गेन अटेंशन ऑफ द अदर पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड। यस, गो अगेंस्ट माइनिंग। अगर वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रिजर्व्स है, सेंचुरीज है, डोंट किल देयर हैबिटेट्स एंड गो अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। दिस इज व्हाट वी शुड डू। मतलब वी आर द एजुकेटेड पीपल, वी शुड ऑल्सो सपोर्ट देम and we should also try to gain attention. Okay. The residents of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 acres of forest as the Bhairodev Dakau Sanctuary, that is Sanctuary. They have also declared their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. So इन्होंने क्या किया है? In the Alwar district of Rajasthan, residents of 5 villages in the Alwar डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। फोर्थ पॉइंट वापस राजस्थान की ओर जा रहा है। ये अलवार है। सो व्हाट्स द पॉइंट? रेसिडेंट्स ऑफ 5 विलेजेस। इसके पास विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5। कहाँ से? अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से हैव डिक्लेयर्ड। ये एरिया कितना है स्टूडेंट्स? ये एरिया कितना है? दिस जोन इज 1,200 एकर्स ऑफ लैंड। इसमें क्या क्या उन्होंने प्रोहिबिट किया है?
ऑफ फॉरेस्ट एज दी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया उसको, एज दी भैरवदेव दाको सेंचुरी. दिस इज नेम्ड एज भैरवदेव, स्पेलिंग चेक करो. एंड नेक्स्ट इज दाको, DAEAV, एंड नेक्स्ट इज सेंचुरी, SONCHURI. ओके, इसमें क्या, इसमें उन्होंने उनके रूल्स बनाए. दे हैव मेड ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which do not allow hunting, no hunting, and are protecting the wildlife against any outside encroachment, no encroachment. So इससे क्या होगा, इससे जो भी उधर का जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रिजर्व होना शुरू हो जाएगा. इट विल नॉट बी अंडर एनी मोर थ्रेट. इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये वो लोग खुद से कर रहे हैं, अपने खुद के ज़मीन के लिए कर रहे हैं, वहाँ के हैबिटेटेड एनिमल्स के लिए कर रहे हैं. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो दिस द फर्स्ट, एक आंसर है ये 120 वर्ड्स का. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कौन से गुड प्रैक्टिसेस है टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो द गुड प्रैक्टिसेस आर, so let us start jotting them down. Okay, people preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves, the forest of god and goddesses. So हमने ये डिस्कस किया था. So I'm just adding the main word now, that is the sacred groves. These are the virgin forest. Okay, certain societies respect and worship a particular tree which they have preserved from time immemorial. That means बहुत टाइम से इसका वर्शिप किया जाता है. सो एक कोई भी स्पेसिफिक ट्री होगा, इस ट्री का क्या होगा, बिकॉज इट इज बीन वर्शिप्ड, इसका होगा कंजर्वेशन. ओके, नाउ एक लिस्ट बनाते हैं. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua and Kadamba trees. So the Mundas and the Santhal. The Mundas and the Santhals of Chota Nagpur plateau. ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग किसको वर्शिप करते हैं. दे आर वर्शिपिंग the Mahua and the Kadamba. They worship Mahua and the Kadamba. Okay. Now, the tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind. So, second point is the tribals of Odisha and बिहार, ये लोग किसको वर्शिप करते हैं स्टूडेंट्स. द वर्शिप इन द ट्री नोन एज टैमरिंड. ओके, इनके साथ साथ और एक ट्री आएगी, दैट इज टैमरिंड एंड मैंगो. दिस आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर द वेडिंग सेरेमनीज. ओके, द नेक्स्ट वन, many of us consider people and banyan trees sacred and worship them at several occasions. So most of us, so I will write most Indians. So most Indians worship which trees? The banyan tree and the people. Okay. The sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals. Several troops of macaques and langurs live around many temples, are treated as a part of the temple devotees. So wildlife के हिसाब से वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है. और इसमें गुड एग्जाम्पल आई कैन ऐड टू दिस इज द बिश्नोई community of Rajasthan. This you must have also seen on Discovery. काफ़ी बार आता है ये, जिसमें वो लोग बहुत से एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं. दैट इज़ दी ब्लैक बक, जिसको हम चिंकारा बोलते हैं.
दे प्रोटेक्ट नीलगाई, पीकॉक, एंड दीज आर बीइंग कंजर्न इन सच अ मैनर कि इनको कोई भी हार्म नहीं करता. तो स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. So first question is, please listen to me very carefully. Explain two reasons for having high percentage of forest cover in northeastern states in India. तो सबसे पहला रीज़न मैं दे रहा हूँ. I am writing the answers. So these are the important questions in detail. So answers. First one, it is a mountainous and hilly track and allow the growth of forest without any hindrance. So there is no hindrances due to mountainous and hilly area. Okay, now second point, heavy rainfall because of the mountainous areas वहाँ पे काफ़ी अच्छा rainfall है. So second point is heavy rainfall is there. Third, the tribal population protect and conserve their own habitat for their own practices. So लोग वहाँ पे जो tribal population है वो भी उसको काफ़ी हद तक मदद करता है in protection and conserving them. Okay. So that tells me my question. Again I am repeating. Explain two reasons. So कोई भी दो reasons आप देख सकते हैं for having high percentage of forest cover in northeast India. So northeast India में जो major states we know वहाँ पे ही आपको ये answers मिलेगा. Now, so the second question which we are discussing now. Yeah. The question is, enumerate the factors responsible for decline in biodiversity of India. Also state causes of environmental destruction. So एक हो गया decline in biodiversity of India और एक हो गया causes of environmental destruction. इसको हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं. So there are many questions possible. I am considering this a very important question. So let us go to the first point. The factors responsible for decline in biodiversity. Factors responsible for declining of biodiversity. Okay. इसमें सबसे पहले आएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोचिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय स्मगलर्स, पुअर लॉ एंड पुअर स्टेट ऑफ अवर नेशनल पार्क एंड जोलॉजिकल पार्क्स. सो मैंने बहुत कुछ बोला है, मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ. हम लोग उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. वी आर नोटिंग डाउन मेजर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हम नोट डाउन कर रहे हैं. सबसे पहला है हैबिटेट destruction, that means cutting of forest. अगर फॉरेस्ट कट हो रहे हैं so there is poor law, मतलब पनिशमेंट्स नहीं हो रहे. इसका मतलब हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ भी चालू है. अगर हंटिंग चालू है तो उनको और भी थ्रेटन किया जाएगा, मतलब पोचिंग एंड पॉइजनिंग चालू है. सो पोचिंग इज गोइंग ऑन, पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स इज गोइंग ऑन. बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ जहरीला खाना खिला के उनको मार डालना है, सो किलिंग भी चालू है. सो मैंने ये सब क्लब कर दिया ताकि ईजी लगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग पुअर स्टेट ऑफ नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड सेंचुरीज. नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ये जो है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, मतलब बहुत बेकार कंडीशंस में रखे हुए हैं. उसके साथ साथ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. सी दीज पीपल कांट स्पीक, सो दे कैन नॉट गो कम एंड डू आंदोलन इन फ्रंट ऑफ अस. तो ये लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको और
बेकार कंडीशन में लेके जा रहे हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एंड सेकेंड इज रैपिड डेवलपमेंट. द लास्ट वन इज, इसका मेन कारण है रैपिड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस. ओके, सो दैट टेल्स मी अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी. काफ़ी कॉमन से पॉइंट्स है. नाउ नेक्स्ट, मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. ये इसका पार्ट ए था सेकेंड क्वेश्चन का. सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट बी. Yes, the part B is major causes of environmental destruction. Unequal access of people, unequal distribution of resources, unequal consumption of resources. So, differential sharing of responsibility for environmental well-being and overpopulation in third world countries. So एक पॉइंट में ऐसा लिखता हूँ, अनइक्वल. इसके 3 पार्ट्स. अनइक्वल क्या? अनइक्वल एक्सेस ऑफ पीपल, सेकेंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of resources. Okay, next is differential sharing of responsibility of environmental well-being. मतलब ठीक से शेयरिंग नहीं हो रहा है. शेयरिंग ऑफ ड्यूटीज एंड responsibilities. The last one is overpopulation in third world countries. or in the low developed countries. Okay, so now इसी क्वेश्चन को पूछने के तरीके बहुत सारे मैंने को पहले ही बता दिया था. सो ऐसा भी आ सकता है कि which 3 human activities are responsible for the depletion of flora and fauna. Human activities responsible for depletion of flora and fauna. So these are all the same answers for the same type of questions. Now let us go to the next one. The next question which I am going to discuss with you depends upon the category which I want you to understand, that is the conservation of forest. So when I say conservation, इसका एक major point आता है कि भाई what is the necessity of conservation of forest and wildlife in India. So the third one is based on conservation. The points looks quite repeated, so I am going faster. Conservation is needed in the background of rapid decline in forest and wildlife population. So जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ये होना चाहिए बैकग्राउंड में, और ये उतना ही ज़्यादा होना चाहिए. टू कंपनसेट दी एक्चुअल जो डिप्लीशन हो रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, उसको कंपनसेट करने के लिए कंजर्वेशन भी उतना ही ज़्यादा बैकग्राउंड में होना चाहिए. इट इज़ नीडेड. Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems, water, air and soil. So ecological diversity को preserve करता है. It preserves the ecological diversity. It gives us the purest form of water, air and soil. Third point, it also preserves the genetic diversity of plants and animals for better species growth and breeding. It also preserves the genetic diversity of plants and animals. Okay. So, for example, in agriculture, we still depend on traditional crop varieties, fisheries, and heavily depend on the maintenance of aquatic biodiversity. So, that tells me how do I do conservation. Now, let us take a note on biosphere reserves.
Okay. Now, biosphere reserves are that forest where flora and fauna of all types are conserved. So, इसमें क्या होगा? All type will be conserved. Flora and fauna of all types is conserved. Okay. Second point, the process, the main purpose or the main process of setting up a bioreserve are depending upon various factors. So let us see some of the major factors. The first one is to preserve the wildland. The first one is to preserve the wild land, इट्स फ्लोरा एंड फौना इन द नेचुरल फॉर्म. सो किसी भी चीज़ को अगर हम नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ का अच्छे से प्रिजर्वेशन होना ही होना है. द सेकेंड पॉइंट इज द सराउंडिंग जोन्स विल बी यूटिलाइज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड देन प्रोडक्ट्स. सो सराउंडिंग एरिया is used for research and development. हर एक चीज़ का रिसर्च भी ठीक से होना चाहिए ताकि अच्छे से कोई भी चीज़ डेवलप हो. टू यूटिलाइज दी पेरिफेरीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन. टू यूटिलाइज दी पेरिफेरीज फॉर व्हाट, फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लस एक्सपेरिमेंट्स. सो अगर मुझे कुछ नया डेवलपमेंट करना है, मेरे पास कोई नेट फॉर्मूलाज है, कुछ केमिकल स्टडी करनी है, तो मैं यहाँ पे मेरी स्टडीज़ करूँगा. बायोस्फीयर रिजर्व आर 18 इन नंबर इन इंडिया एज ऑन टुडे. ये कितने हैं इंडिया में? 18 है इंडिया में. नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ देम आर नीलगिरी, नंदा देवी, नॉर्केक, सुंदरबंस एंड अंडमान. सुंदरबंस एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो कहाँ मिलेगा आपको? सम ऑफ देम आर नीलगिरी, ये एक आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज नंदा देवी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ऑल एक्चुअली ब्यूटीफुल प्लेसेस बट आई लाइक दिस वन मोर, नंदा देवी. नेक्स्ट इज नोक्रेक. नेक्स्ट इज सुंदरबंस, ऑसम 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 सुंदरबंस. नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Okay, now let's go to the next one. Now we are discussing the important question, that is the project tiger. Okay, so basically ये एक प्रोजेक्ट है जो 1973 में लॉन्च हुआ था. तो इसके बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम दे रहा हूँ आपको इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर. सो कभी लॉन्च हुआ? दिस वॉज लॉन्च्ड इन 1973. So it was one of the well-publicized wildlife campaigns of the world. In the beginning, the project proved successful. So हम लोग सीधा main point पे आ रहे हैं. It was a quite publicized, मतलब काफ़ी सारा awareness हुआ था इसके बारे में. Publicized wildlife campaign in world. सेकेंड पॉइंट, टाइगर पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी सक्सेसफुल रहा. सो कैसे? सो इन 1985 द पॉपुलेशन वॉज 4002. 1989 it was 4334. सो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन 2011 में इट वॉज 2738. So what does this tell me? The population started decreasing. The tiger population was dropped to 3,600 in 1993. Okay, so now the next point. इसका मतलब यही हुआ है कि इधर भी वही हुआ, प्रोजेक्ट चालू हुआ, सक्सेसफुल होना शुरू हुआ, हाइप हो गया, एंड देन धीरे धीरे उसका डिक्लाइनिंग पीरियड भी स्टार्ट हो गया. ऐसा क्यों हुआ होगा? एनी गेस? यस, बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रेडिंग
of tigers, and that's how it had damaged the major project tiger. At present there are 53 tiger reserves in the country. अभी कितने हैं? 53 tiger reserves in India. Tiger conservation has not only been viewed as an effort to save endangered species, but also with an equal importance for preserving the biotypes of great magnitude. So स्पीशीज़ को तो बचाना ही है, हमें टाइगर को तो बचाना ही है, उसके साथ साथ जो उसके एसोसिएटेड जो भी एनिमल्स है, जो उसका हैबिटेट है, वो भी उसके साथ साथ क्या होगा, सेव किया जाएगा. So now the next point is, out of the 53 tiger reserves, the following are some of the major tiger reserves. So सबसे पहला है the Corbett National Park. The Corbett National Park in Uttarakhand. Second one, the Sundarban National Park in West Bengal. Third, the Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh. Next, the Sariska Wildlife Sanctuary in Rajasthan. Okay. Next, the Manas Tiger Reserve in Assam. Next is the Periyar in Kerala. And the last one is the Kanha in Madhya Pradesh again. So these are the notable points of the Project Tiger. I hope you enjoyed the